collisions. There are two types of collisions: elastic collision and inelastic collisions. Okay, and I told one more term regarding collision, that is coefficient of restitution. Coefficient of restitution describes the nature of collision, whether it is elastic or inelastic. It is defined as the ratio of the relative velocity before collision and ratio of to the relative velocity after collision. And I told you that for perfect elastic collision this value is 1, and for perfectly inelastic collision this value is 0. Inelastic collision. So most of the collisions this E value varies between 0 to 1. So this thing we have completed yesterday. Now today we will start the elastic collision in one dimension. There is a derivation now. Now we are doing the derivation of the elastic collision. Okay. So let us see how to we do with the derivation. Elastic collision in one dimension. One dimension means the two objects which are involved in the elastic collision, and elastic collision means two quantities will be conserved constant, that is linear momentum and a kinetic energy. Kinetic energy and linear momentum will be conserved during the elastic collision. When we talk about the elastic collision in one dimension, that means the particles which are involved in the collision, doing the collision, they are moving along the straight line path, and after collision they also will move along the straight line path. So what are our assumptions in this derivation? That the two particles which are involved in the elastic collision, they are moving along the straight line path before collision, and after collision they are along involved in the straight line path. They are not deviating from their straight line path. If they deviate from straight line path, then it is called as oblique collision. That we will do later on. First we discuss the elastic collision in one dimension. Okay students, I think it is clear to everybody what we are going to discuss today. It is clear to everybody. Now wake up. I think that you are properly wake up, all students. Now you should be ready with your copy and pen, notebook, and you should now ready for the preparation of study. And now we are doing the derivation of the elastic collision in one dimension. So let us start this. So suppose मान लीजिए, let us consider there are two objects having the mass m1 and m2. Let us, this mass m1 has the velocity u1, this mass has the velocity u2, and if I say that velocity u1 is greater than u2, now they suffer elastic collision. Now they suffer, इनके बीच हमने क्या दिखा दिया ये, now they suffer elastic collision. Okay, now what happens after collision? I told you already, they will move along the straight line path. Before the collision they were moving along the straight line path. And let us consider after collision their velocities become v1 and v2. Okay, so before collision their velocity u1 and u2, and after collision their velocity become v1 and v2. Okay, so what we will do in this derivation, first of all we will prove that the coefficient of restitution is 1. Coefficient of restitution is 1, that we will prove. Second thing, we will prove that वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कैलकुलेशन, मतलब हम क्या करेंगे, v1 और v2 का वैल्यू निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट. तो मैंने आपको बताया था, इफ दिस इज ए इलास्टिक कोलिजन देन मोमेंटम विल कंजर्व एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2. I told you in any collision the net momentum before collision equals to the net momentum after collision. I told you yesterday. So that we are doing the same here. Two objects having m1 m2 mass having the u1 and u2 initial velocity. Now before starting the collision, before involved in the collision, the momentum of first is m1 u1 and momentum is second is m2 u2, and since they are going along the straight line path in the same direction, they are going along the straight line path, so I have just added their momentum simply.
However, momentum is a vector quantity, but we know that if the two vectors are acting along the same direction, then we can simply add them. Okay, ये आपको वेक्टर वाले चैप्टर में बताया गया था. If the two vectors are acting in the same direction, then we can simply add to find their resultant. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पहले आपको बता दिया कि हम वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन लेके चल रहे हैं. तो यहाँ पे द पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही है और कोलिजन के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही है. तो इसीलिए हमने क्या किया है, उनका जो मोमेंटम है वो ऐड कर दिया है, सिंपली ऐड कर दिया है, वेक्टर रूल हमने नहीं लगाया है. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. Now after collision the velocity become v1 and v2, so I will write m1 v1 plus m2 v2. Now I can write m1 u1 minus v1 equals to m2, that is v2 minus u2. ठीक है, m1 u1 minus v1 देखो क्लियर हो गया सबको, हमने इधर उधर ट्रांसफर कर दिया. और m2 v2 और m2 u2 इधर ये माइनस का हो जाएगा और m2 को मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को. आई थिंक इट इज क्लियर. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. 8-10 is already there. Now by kinetic energy conservation we can write, by kinetic energy conservation, so by kinetic energy conservation we can write total kinetic energy before collision half m1 u1 square plus m2 u2 square half equals to total kinetic energy after collision, that we can write m1 half m1 v1 square plus half m2 v2 square. You can see half will be cancelled out in LHS and RHS side. So again we can get m1. I think it is clear, it is visible. Okay, थोड़ा सा नीचे चला गया. ठीक है. Okay student, I can write now in, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर चला गया. तो now you see here half will be cancelled out, then I can write m1 means u1 square minus v1 square equals to m2, that is v2 square minus u2 square. Okay, v2 square minus u2 square. This is equation number 2. Now हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें. देन वी कैन राइट m1 u1 minus v1 अपॉन m1 u1 square minus v1 square equals to m2, that is v2 minus u2 upon m2, that is v2 square minus u2 square. I think it is clear. मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया. इक्वेशन 1 ये वाली देखो, ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाई थी, m1 u1 minus v1 equals to m2 v2 minus u2. और एक इक्वेशन जो हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से ऑब्टेन की है, m1 ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. अब हमने इक्वेशंस को क्या कर दिया है, डिवाइड कर देते हैं. तो नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशंस. नाउ यू कैन सी m2 m1 कैंसिल. देन यस, तो क्या देख पा रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला कंसेप्ट है यहाँ पे. तो u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1 सभी बच्चे जानते हैं ये. देन यहाँ पे भी हमने देखा v2 माइनस u2 और यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस प्लस u2 और v2 माइनस u2. मतलब ये जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मुझे नजर आया तो मैंने इसको अगेन a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा करने से ये v2 माइनस u2 और u1 माइनस v1 का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों. ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? डाउट तो बता देना. अभी ऑनलाइन स्टडी में तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा कि क्या करनी है. u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. v2 प्लस u2 इक्वल्स टू u1 प्लस v1, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गया.
Now you see u1 minus u2 equals to v2 minus v1 और u1 minus u2 और u1 minus u2 equals to अपॉन, इसको तो अपन ने e बोला था कल, और ये किसके इक्वल आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया, देखो यहां से जो v2 बाई v1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसी को अपन ने कल क्या बोला था, कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन e बोला था, इफ यू रिमेंबर। relative velocity before separation u1 minus u2, relative velocity after separation v2 minus v1। तो relative velocity before separation, relative velocity after separation, before collision सॉरी, और इसको अपन ने कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन बोला है, और ये 1 आ गया, देखो यहाँ से जब ये वैल्यू इसके नीचे जाएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट, वेरी सिंपली वी हैव प्रूव्ड दैट in elastic collision, in perfect elastic collision, the coefficient of restitution is a 1। coefficient of restitution क्या होता है, इसमें 1 होता है स्टूडेंट्स, किसके अंदर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी दैट हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस। नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क रिगार्डिंग दिस, कि कैसे हमने इसका कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन को 1 किया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नो डाउट, नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग। राजेश कुमार मीना जी वर्मा कह रहे हैं नो डाउट। चलिए, तो एक बात तो ये हो गई। अब हमें एक सेकंड पार्ट क्या करना है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब सॉरी कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन 1 प्रूफ कर दिया अपन ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी v1 एंड v2, दीज आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मतलब यदि हमको उनके मास दिए गए हैं और उनका वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यदि दिया गया है u1 u2, तो व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, v1 और v2 निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा v आपको हो सकता है नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन वो आप देख लेना, v वेलोसिटी v है वो, ठीक है। देखो एक तो अपन ने क्या लिखा, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू v2 माइनस u2, ये इक्वेशन लिखी नहीं लिखी अपन ने, इसको थर्ड बोल देते हैं। अभी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन जब डिवाइड किया था इक्वेशन 1 और 2 को, जस्ट ये वाली, तो अपन ने ये लिया था नहीं लिया था, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन से अपन ने क्या लिखा था, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, इक्वेशन 1 थी ना ये वाली, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। अभी क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन बोली है, इससे यदि आप v2 का वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो पूरी इक्वेशन v1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास फिर v1 आ जाएगा। और इसी तरह से फिर इस ऊपर वाली इक्वेशन से जब v1 का वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, v2 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से v2 का वैल्यू रखने पर आपको v1 मिलेगा, और v1 का वैल्यू रखने पर आपको क्या मिलेगा, v2 मिलेगा। व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। यहां से आप देखिए पहले v2 कितना मिल रहा है आपको एक बार, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे। v2 आपको मिल रहा है u1 माइनस v1 प्लस u2, u1 minus v1 plus u2, okay, that is equals to v2, okay। तो m1 u1 minus m1 v1 और m2, और ये मैं v2 का वैल्यू डाल रहा हूं, देखो ध्यान से समझिए, आप भी करिए अपनी नोटबुक में, यू शुड आल्सो सोल्व इन योर नोटबुक, अपनी नोट में आप खुद भी सोल्व कीजिए। यस, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। नो 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 तन्मय मीना, यू आर राइट, ये वाली इक्वेशन बोल रहे हैं u1, ये सही लिखी है, आप चेक करिए इक्वेशन 1 को, हमने जब वो ट्रांसफर कर दी थी टर्म को, दैट इज रॉन्ग। u1 माइनस u2 नहीं होगा बेटा, u1 माइनस v1 और v2 माइनस u2।
ठीक है, थोड़ा चेक करिए। हाँ वो तो नहीं, चेक करिए, आपने गलत लिखा है। अभी हमने लिखी ना इक्वेशन 1, उससे आप देखिए, योर इक्वेशन इज रॉन्ग। तन्मय मीना, यू आर राइटिंग u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। कैसे आएगा भाई, बताओ आप? when we are taking the both the objects are moving the same direction before collision and after collision, तो मैंने भी आपको इक्वेशन 1 लिख के बताया तो था। नाउ यू चेक इट अगेन, ये सही है। u1 माइनस वो इधर जाएगा ना उधर से तब, और v2 माइनस u2, ठीक है वो। यस, तो व्हाट आई एम डूइंग, m1 u1 माइनस m1 u1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, m2 v2 का वैल्यू हम रख रहे हैं u1 माइनस v1 प्लस u2, देन माइनस u2, ये माइनस u2 एज इट इज हो गया। ठीक है एवरीबॉडी, तो देखो मैंने क्या किया, v2 का वैल्यू दिया u1 माइनस v1 प्लस u2, और ये माइनस u2 एज इट इज रखा ही है। अब इसको अपन अंदर डाल देते हैं वापिस, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू, नाउ m2 u1 माइनस m2 v1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u2। एक मिनट, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई है तन्मय मीना, आई थिंक यू आर राइट। ये जो इक्वेशन लिखी थी ना अपन ने, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। आई जस्ट अगेन आई राइट इट। अपन ने लिखा था u1 प्लस v1, माइनस वाली टर्म तो कैंसिल हो गई थी, इक्वल्स टू v2 प्लस u2। यस 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 यस, यू आर राइट। u1 माइनस, तो यहां से हमारी v1 की वैल्यू आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गई है थोड़ी, तो ये आ जाएगी v2 प्लस u2 माइनस u1। ओके यस, v1 की वैल्यू आएगी v2 प्लस u2 माइनस v1। ये इक्वेशन नंबर 3 जो डिवाइड करने पाई थी मैं गलत लिख दी बच्चों, इसको दोबारा करिए आप, m1 u1 माइनस m1 v1 नाउ इक्वल्स टू m2 u2। यस, नाउ आई राइट v2 प्लस u2 माइनस u1। हाँ अब सही आ जाएगा देखो। यस, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 प्लस m2 u2। देखो एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रही है, v2 प्लस u2 माइनस u1, और यहां पे अपन ने क्या लिखा है, m1 u1, अगेन u2 कैंसिल हो रहा है। एक मिनट, m1 u1 माइनस v1, एक बार m1 u1 माइनस m1 v1 v2 माइनस u2, लेट अस एक बार जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ओहो, हमने v1 का वैल्यू डालना है ना, हमने गड़बड़ क्या कर दी, हमें v1 का वैल्यू डालना है, हमने v2 का वैल्यू डाल दिया। ठीक है ठीक है, हमें v2 का वैल्यू डालना है, यहाँ गड़बड़ हमने खुद करी है, एक बार फिर गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, सॉरी। ये हमें यहाँ पे v2 का वैल्यू डालना है बच्चों, u1 प्लस v1 माइनस u2। ओके, अब आप डालिए v2 का वैल्यू, दैट इज u1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2। नाउ इट इज करेक्ट। देन m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 u1 प्लस m2 v1। अब ये 2u2 हो गया तो माइनस 2m2 u2। नाउ इट इज करेक्ट। ओके, अब स्टूडेंट हो गया। वो कुछ हमने क्या गड़बड़ कर दी थी, हमने पहले v2 की वैल्यू v1 की वैल्यू निकाल ली थी और रख दी v2 की जगह थी, समझ में आई बात? तो ये कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं। तो v2 इक्वल्स टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ओके, नाउ इट इज क्लियर। नाउ हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है। तो हमें क्या करना है, v1 की टर्म को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को आप एक तरफ ले लेंगे, तो यू विल गेट m1 u1 और माइनस m2 u1, m2 u1 इधर आ जाएगा, और प्लस 2m2 u2
और इधर आप लिखेंगे m2v1 और ये माइनस m1 प्लस का हो जाएगा प्लस m1v1। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, u1 कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2, और यहाँ पे आपने v1 कॉमन ले लिया, दैट इज m1 प्लस m2। ओके, अब आपको कुछ ही नहीं करना इसमें ज्यादा, केवल आपको v1 निकालना है। तो v1 के लिए इसको आप नीचे डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, तो यू विल गेट 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2, आई थिंक इट इज विजिबल, यस, m1 प्लस m2। तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी v1। यस, आई थिंक इट इज क्लियर। कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो हमने सही कर दी है। तन्मय मीना, यू आर राइट, आई एम सॉरी। तो 2m2u2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v1। ठीक है, दोबारा समझ लो, हमने ये वाली इक्वेशन पहले बच्चों गलत लिख दी थी, इसको सही करेंगे। u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ओके, यहां से v2 की वैल्यू आपने लिखा u1 प्लस v1 माइनस v2 माइनस u2, सॉरी, और ये वाली जो v2 की वैल्यू है उसको अपन ने यहाँ v2 की जगह पुट कर दिया, ये माइनस u2, ये इधर मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन कहां से आई, मोमेंटम कंजर्वेशन से आई थी, जो इक्वेशन 1 है ना हमारी, ये हमारी इक्वेशन 1 है जो मोमेंटम कंजर्वेशन से आई थी। m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2, v2 की जगह हमने वो पुट कर दिया u1 प्लस v1 माइनस, तो ये 2u2 हो जाएगा। तो ये बाकी फिर हमने जो हमें निकालना था उसको एक तरफ ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखिए इस थर्ड इक्वेशन से यदि आप v1 का वैल्यू निकालेंगे और सोल्व करेंगे, मतलब v1 का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारी 1 नंबर की इक्वेशन है, इसमें यदि आप किसका वैल्यू पुट करेंगे अब की बार, v1 का वैल्यू, v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। समझ में आ गया v2 निकालने का तरीका सबको। हमें v2 निकालना है तो v1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1, तो दैट विल बी गेटिंग। तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं है, एक बार एक वैल्यू आपको लर्न करनी है, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर, ये आपने लिख लिया होगा। यस, तो नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर कैलकुलेटिंग द v2 निकालने के लिए, फॉर v2 क्या करेंगे, यहां से v1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, v2 प्लस u2 माइनस u1, और इसको कहां रख देंगे, इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है। आइए मैं लिख देता हूं आपको, फिर आप सोल्व कर लेना। पुट v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2 माइनस u1 इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी मोमेंटम कंजर्वेशन से जो आई थी, उसमें रख देंगे जिसे अभी मैंने रखा था। और आपके पास क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। क्या आएगा v2, देखो v2 निकालने का तरीका सुन लो, v2 याद करने का तरीका, एक बार यदि v1 की वैल्यू याद आ गई तो इसमें जब 1 का 2 कर दो, 2 का 1 कर दो, जो v1 की वैल्यू है उसमें 2 का 1 कर दो, 1 का 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। आप चेक करके देख लो, यानी मैं को यदि v1 का वैल्यू मिल गया तो मैं v2 लिख सकता हूं आफ्टर कोलिजन, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी। देखिए जहां 1 है वहां 2 और 2 का 1, तो ये हो जाएगा 2m1u1, 2 का 1, 1 का 2, सिंपल, रिमेंबर सिंपल थिंग, 2 का 1, 1 का 2, तो m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप चाहे 2 प्लस 1 करो या 1 प्लस 2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो सर आप m2 प्लस m1 लिखो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, m2 प्लस m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, एक ही बात है ना, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे m2 माइनस m1 कर दिया, यहाँ पे m1 माइनस m2 था, मैं कह रहा हूँ 1 का 2 करना है, 2 का 1 करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो u1 है तो वहां u2 कर दिया, m2 माइनस m1 कर दिया, क्योंकि पहले m1 माइनस m2 था। और आप करके देख लो, ये वैल्यू जो आपकी है ना, इसको आप जो सोल्व करेंगे ना, सॉरी अगेन v2 प्लस u2 आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे, रख के इक्वेशन नंबर 1 में, देन यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ v2 दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, दैट सेम वैल्यू यू विल गेट। तो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो अब बताइए, इज दिस क्लियर और नॉट, इसमें कोई डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क। नाउ आई एम करेक्टेड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो दीज आर द टू फॉर्मूला
of the velocity. Now Tanmay Meena is saying, but 17 students are there only in the class today. That is very pathetic condition that in morning, in home itself, you are not able to study. So now V1 और V2 का वैल्यू हमने क्या निकाला, 2m2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, दोबारा लिख देता हूं एक बार, प्लस U1 M1 माइनस M2 M1 प्लस M2, और V2 का वैल्यू क्या निकाला, 2m1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस कंसीडर करेंगे। ये कंडीशंस आपके एग्जामिनेशन में आती है शॉर्ट क्वेश्चंस बन के। तो फर्स्ट केस अपन लेते हैं, इफ M1 इक्वल्स टू M2, यानी इलास्टिक कोलिजन करने वाले जो दोनों पार्टिकल है उनका मास क्या है, सेम है। इफ द मास ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम, तो देखिए क्या हो जाता है, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, देखो। तो V1 वी विल राइट, देखिए यदि अपन यहाँ पे दोनों पार्टिकल का मास सेम कंसिडर करें, सपोज हमें कंडीशन लेके चल रहे हैं कि भाई ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यदि दोनों का मास सेम हो जाता है, तो दोनों का मास सेम हो जाता है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। देखिए M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड देन वी कैन राइट 2m U2 अपॉन 2m, क्योंकि जहां जहां M1 M2 वहां पे MM कर दिया तो ये 2m से 2m, तो वी कैन गेट V1 इक्वल्स टू U2। इसी तरह से देखो V2 क्या हो जाता है, लेट अस सी, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल, जीरो, तो 2m U1 अपॉन 2m, तो दैट वी कैन गेट V2 इक्वल्स टू U1। तो देखो आपको क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला, उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई नहीं हो गई, इंटरचेंज हो गई नहीं हो गई। अरे जो पहले की वेलोसिटी थी वो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी बन गई आफ्टर कोलिजन, और जो दूसरे की वेलोसिटी वो पहले की इनिशियल वेलोसिटी बन गई। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स of same mass suffer elastic collision in one dimension, then after collision their velocity are interchanged, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट या प्रूव दैट, एक्सप्लेन दैट, कुछ भी लिख सकता है। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास एग्जीक्यूट या सफर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इंटरचेंज, ये प्रूव करना है। तो वहां पे आपको फिर V1 और V2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि V1 V2 कहां से आया, आप डायरेक्टली V1 V2 से चालू कर सकते हैं। तो ये वैल्यू इसलिए भी याद करनी जरूरी हो जाती है। और इसमें ना वो क्या बताया, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू आप लर्न कर लीजिए ओनली। आप V1 की वैल्यू लर्न कर लेंगे तो V2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करना था, बस 2 का 1 1 का 2 करना है। आई थिंक इट इज क्लियर। यू हैव टू मेमोराइज ओनली वन वैल्यू V1 and rest remaining V2 will automatically come when you will replace 2 by 1 or 1 by 2, 1 को 2 से 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, then you will get automatically V2। तो V2 की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, V1 की वैल्यू लर्न कर लीजिए। क्यों कर लीजिए लर्न, समझ में आया ना मैंने आपको। सपोज ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क्स में, तो पूरा डेरिवेशन थोड़ी करेंगे अपन, फिर अपन V1 V2 से स्टार्ट करके और लास्ट में फिर M1 M2 इक्वल करके ये शो कर दिया, देखो V1 इक्वल्स टू U2 और V2 इक्वल्स टू U1। तो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास सफर इलास्टिक कोलिजन देन देयर वेलोसिटी इंटरचेंज। समझ में आ गई आई थिंक सबको। दो सेम मास के ऑब्जेक्ट्स यदि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब समझ गए ना, V1 इक्वल्स टू U2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, एंड वाइस वर्सा। सेकंड केस लेते हैं अपन। अब अपन ये मान से चलते हैं कि लेट ए सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट, लेट अ सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट इनिशियली। जो सेकंड पार्टिकल है वो रेस्ट में है इनिशियली। इनिशियली वो क्या है,
रेस्ट में है, तो इनिशियली रेस्ट में इसका मतलब U2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने मान लिया कि सेकंड पार्टिकल क्या है रेस्ट में, मतलब इनिशियली U2 क्या ले लिया अपन ने, जीरो। तो सेकंड पार्टिकल को रेस्ट में मान लेंगे तो V1 V2 क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पे U2 जीरो कर दो, तो V1 का फॉर्मूला बन जाएगा U1 दैट इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और आपका V2 क्या बन जाएगा, दैट इज 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। अरे यदि हम बोल रहे हैं सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी V1 की, तो केवल यही बचेगा, और V2 में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, U2 जीरो मान रहे हैं तो 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इफ द सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट then the velocity of the other collision can be written as now इसमें हम सब पार्ट लेते हैं। अब केस 2 में सब पार्ट, इसके भी पार्ट ले लेते हैं कि सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट, सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, केस 2। अब इसका सब पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट एंड एक का मास क्या है, दूसरे से बहुत ज्यादा है, M1 इज ग्रेटर देन M2। क्या बोला, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है और M1 इज वेरी ग्रेटर देन M2, तो अपन क्या मान सकते हैं, M2 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब बहुत नेग्लिजिबल। तो यदि अपन यहाँ पे M2 को नेग्लिजिबल मान ले, देखो क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, V1 का वैल्यू क्या बन जाएगा, M1U1 अपॉन M1, तो M1 से M1 कैंसिल, V1 इज इक्वल टू U1। और V2 क्या आता है, देखो जरा, V2 क्या आता है, V2 M2 को नेगलेक्ट मान रहे हैं तो 2M1U1 अपॉन M1, M2 को जीरो ले लिया, M2 को नेगलेक्ट माने तो M2 जहां M2 इसमें U2 जीरो मान के चल रहे हैं सारी बात। अब U2 जीरो मान के, ये ऊपर वाली इसमें लगा रहे, इसमें ये ध्यान रखना। तो वी कैन गेट M1 कैंसिल देन V2 इक्वल्स टू 2U1। समझे कुछ क्या आया, यदि सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है और पहले पार्टिकल का मास दूसरे से बहुत ज्यादा है, तो पहला पार्टिकल तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चलता रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो रेस्ट में था पार्टिकल, जो पार्टिकल पहले रेस्ट में था, वो डबल वेलोसिटी से पहले वाले की उससे मूव करने लग जाएगा, मतलब वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। समझे, यदि एक पार्टिकल का मास पहले वाले का ज्यादा है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल आ रहा है वो तो अपनी कोई वेलोसिटी में चेंज किए बिना सीधा चला जाएगा, और जो सेकंड पार्टिकल है जो पहले रेस्ट में था, वो 2U1 मतलब वो पहले पार्टिकल की डबल वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। यानी कैसे करने लग जाएगा, क्योंकि वो उसको काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने के कारण वो बेसिकली डबल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल से मोशन करने लग जाएगा। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम देख सकते हैं, लेट अस M1 इज लेस देन M2। अब सेकंड पार्टिकल बहुत हैवी हो गया, सेकंड पार्टिकल बहुत हैवी हो गया पहले पार्टिकल से जो रेस्ट में है, मतलब जो पार्टिकल रेस्ट में है वो हैवी है। U2 जीरो माना है ना अपन ने, U2 मतलब M2 का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और वही पार्टिकल को अपन हैवी मान लिया। मतलब विद द पार्टिकल विच इज इन रेस्ट दैट इज हैवी पार्टिकल। तो अपन अब की बार क्या करेंगे, M1 को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो M1 को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 को नेग्लिजिबल मान लो तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू माइनस U1 आ जाएगा। देखो आप चेक करके देख लो, यहाँ पे M1 को हटा दो तो माइनस U1 M2 अपॉन M2, तो M2 से M2 कैंसिल, माइनस U1 आ गया। और V2 क्या आ जाएगा, V2 आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपने M1 को नेगेटिव मान रहे हैं ना, तो 2M ये M1 नेगलेक्ट होती है, जीरो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो पहला पार्टिकल है वो इन्हीं माइनस, मतलब जितनी वेलोसिटी फोक होगी उतनी वेलोसिटी से आपके हाथ में आ जाएगा, रिबाउंस हो जाएगा, और सेकंड पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, उसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में रहेगा। ये कौन सा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या, दीवार पे बॉल फेंकी कभी, खेलते ना कई बार बॉल से दीवार पे मार के, है एक सामने बहुत बड़ी दीवार होती है, हमारे हाथ में एक बॉल होती है, नाउ वी थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द बॉल एंड अगेन द बॉल कम्स इन आवर हैंड,
करते नहीं करते, इस तरह का खेल खेला होगा कभी ना कभी। ये वो वाला कंडीशन आप सोच के देखो, दीवार हो गया आपका M2 और आपका बॉल हो गया M1, तो दीवार का मास बहुत ज्यादा है बॉल के मास से, और दीवार आपकी रेस्ट में भी है, यही तो कंडीशन है। दीवार हैवी भी है और रेस्ट में भी है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो नाउ यू थ्रो द बॉल विथ टुवर्ड्स द वॉल, तो बॉल की वेलोसिटी -u1। हालांकि वहां पे अपन मान रहे हैं कि वो वहां पे अपन ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब बॉल दीवार से टकराई होगी तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि एक्सपेरिमेंटली practically there is some loss in kinetic energy, but if you ignore that small change in kinetic energy, then this can be considered, this can be explained by this, इसको इससे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दीवार की वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो रहेगी। आप कोई बॉल मारो दीवार थोड़ी खिसक जाएगी, है ना, तो लाइक दैट। तो इस तरह से अपन उस कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन वी थ्रो द बॉल टुवर्ड्स अ वॉल, देन द बॉल अगेन रिबाउंसेस इन आवर हैंड। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट इज क्लियर। Assuming that when the ball contact with wall, the loss of kinetic energy is very negligible, ठीक है। इसमें assumptions लेना पड़ेगा अपन को, वो मैं बता दिया है assumptions आपको क्या रहेगा यहाँ पे, तो that you always keep it in your mind। now इसमें अपन क्या ले लेते हैं, ओहो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, चलो दोबारा लिख देता हूँ एक बार। सेकंड पार्टिकल एक बार, एक गड़बड़ हो गई, M1 - M2 M1 + M2, और V2 हमारा था 2M1 U1। एक केस रह गया बच्चों इसमें एक्चुअली। अब हम ले लेते हैं थर्ड सब पार्ट। थर्ड, यदि सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है और दोनों का मास सेम भी ले लेते हैं, एक बार अपन ने M1 को ज्यादा लिया, एक बार M2 को ज्यादा लिया, अब M1 M2 को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट एंड बोथ द मासेज आर सेम, तो V1 क्या हो जाएगा 0, और V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा क्या 2m से 2m, V2 = U1। यानी सेकंड पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट की वेलोसिटी ले लेगा। यानी फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। रिमेंबर, समझ में आई बात। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज 100 ग्राम मास का, अब आपने उसके ऊपर 100 ग्राम मास का ही एक दूसरा पार्टिकल मारा, तो जो पहले वाला पार्टिकल है वो तो रेस्ट में आ जाएगा, और जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो पहले वाले पार्टिकल की डबल सेम वेलो वो ले लेगा। मतलब जो पार्टिकल रेस्ट में था वो पहले वाली पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी ले लेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, क्योंकि मास तो आपने सेम कर दिया ना, तो लाइक दैट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अवर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एग्जाम में ये कंडीशंस आपकी आती हैं, इनको एक्सप्लेन करने को आता है, ये डेरिवेशन भी आ सकता है। सो दिस इज यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल मैनर। कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस एक बार V1 V2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशंस है उसको आप पुट कर दीजिए। मैंने क्या किया, पहले V1 V2 वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद जैसा कहता गया वैसा करता गया। मास सेम है तो सेम कर दिया, तो क्या देखा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। फिर एक को रेस्ट में मान लिया, फिर वैसे हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो दिस इज, तो ये हमारी हो गई परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके बाद आती है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, केवल मोमेंटम ही कंजर्व रहता है। तो सपोज मान लीजिए, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। सपोज ये U1 और ये U2, नाउ दे सफर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने बताया था परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सेम वेलोसिटी से मोशन करते हैं, सेम वेलोसिटी से मोशन करते हैं। तो यहाँ ये तो अंडरस्टूड हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बिकम 0, सो दैट मीन्स देयर विल बी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ई का वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया 0 है यहाँ पे,
क्योंकि मैंने बताया आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल विल join to each other and will move with a constant velocity, same velocity v. अब आप यहाँ पे एनर्जी कितना लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लगेगा लगेगा यहाँ पे, अरे मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। तो वी कैन राइट m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे v कॉमन हो गया तो m1 प्लस m2, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका आ गया कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। अब अपन को निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो व्हाट वी कैन डू हियर, इसमें अपन क्या मान लेते हैं, लेट थोड़ा इजी करने के लिए कि जो सेकंड पार्टिकल है उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। तो हमारे को तो रेशियो निकालना है वैसे भी, तो सेकंड पार्टिकल को रेस्ट पे मान लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमारा v क्या हो जाएगा, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो व्हाट इज द kinetic energy before collision, we can say that is k1, let us say m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि हमने सेकंड पार्टिकल को रेस्ट में ले लिया है तो केवल कितना क्या आएगा, m1 u1 स्क्वायर हाफ। नाउ वी राइट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दैट वी विल राइट k2 दैट इज हाफ m। अब दोनों की वेलोसिटी कॉमन है v, तो दोनों का मास m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी v हो गई ना। कोलिजन के बाद मैंने बताया ना दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है v, और m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया। अब ये v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो मैंने बताया m1 u1, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ m1, सॉरी v का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से एक टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो वी कैन राइट k2 इक्वल्स टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन एक m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में बच जाएगा। अब इसमें इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k2 इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये k1 बन गया। तो k2 इक्वल्स टू k1 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, और नाउ वी कैन राइट k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस m2, सॉरी। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ -1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k2 बाई k1 अपॉन k1, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, तो m1 से m1 कैंसिल, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आएगा नहीं आ जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट वी विल राइट -m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100। माइनस साइन क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो m1 प्लस m2 जो है हमेशा क्या होगा, m1 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्म आपकी ज्यादा हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k2 भी क्या होगी, k1 से कम हो गई नहीं हो गई। तो दैट वी आर टेलिंग, ठीक है। तो इसीलिए अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे होता है, हाउ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो ये वाला डेरिवेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रिपेयर रखना है। ओके, दैट इज। अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। नाउ आई कैन टेक योर अटेंडेंस फॉर द स्क्रीनशॉट।
only some 20 students were present in today's class. That is very ridiculous. रिडिकुलस समझते हो ना, बहुत ही गंदी बात है। मतलब ये 11C सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक क्लास बन रही है, हमेशा 11C का ही पता नहीं इसलिए नाम उछलता है, क्या प्रॉब्लम। Your many students of your class don't interested to attend the class. Why? I can't understand. What is the problem in attending the class? केवल सुबह अपने घर में ही उठ के बैठना है, वो भी कई बच्चों से नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंटली वी आर कॉलिंग, हम कितना फोन करें, क्या रोज रोज हम फोन ही करते रहेंगे क्या आपको? तो स्टूडेंट ये वाली बात थोड़ा सा आप ध्यान रखें। You should attend the class regularly. Frequently we are saying, but even now you can see the condition. Some 17, 16 students are there in the class. Okay, this is the kinetic energy before collision, after collision that we can see. Okay, yes. राघव जी अब आए हैं, पहले भी थे आप, कोई बात नहीं, आई विल मार्क योर अटेंडेंस, डोंट वरी। ठीक है, तो दिस इज, तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया कोलिजन वाला पार्ट। ठीक है, इसके फिर न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे। हाँ हाँ ओके, मैं बोल तो रहा हूँ पहले भी थे आप। आई विल मार्क योर अटेंडेंस, डोंट वरी। ठीक है, नहीं प्रेजेंट हम आजकल जो है स्क्रीनशॉट लेते हैं आपके नामों का, जो हमारे पास आता है राइट साइड में स्क्रीन पे। एट दैट टाइम यू ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, इरशाद हुसैन, योर नेम वाज ऑलरेडी कमिंग, डोंट वरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट और एक पावर वाला पार्ट और इसमें आता है। पावर आप जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। और पावर के बारे में कुछ ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पावर पढ़ाई है आप लोगों ने। वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, डेट इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, पावर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, द वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। तो दैट इज, और W को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स, तो यहाँ डी टी आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो पावर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स डॉट एफ वी, वेलोसिटी सॉरी। तो ठीक है, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, वाट होता है। तो वाट को क्या लिख सकते हैं अपन, जूल अपॉन सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 10th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ के आए ही हैं। 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वही V इंटू आई और आई स्क्वायर आर टी, दैट इज यस। तो पावर का फॉर्मूला होता है कितना एफिशिएंसी से कोई वर्क डन कर रहा है। कम टाइम में कोई कितना ज्यादा वर्क डन कर रहा है, दैट इज मोर पावर। कम टाइम में जितना ज्यादा वर्क डन कर पा रहा है। और एक चीज और बात ध्यान रखनी है, मशीन की एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मशीन, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मशीन हम लिख सकते हैं। मशीन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल में काम आता है आउटपुट पावर। आउटपुट मतलब कितना मिल रहा है, और इनपुट पावर मतलब कितना दिया अपन ने उसको। कोई भी मशीन का आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, दैट इज बेसिकली परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, वर्क एनर्जी पावर। इसमें पावर में कुछ ज्यादा खास था नहीं। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आप भी कल प्रैक्टिस करें, कल हम कुछ कोलिजन के अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। और ठीक है, ओके स्टूडेंट, विद दिस आई कंक्लूड दिस क्लास।